السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا وفی حلوۃ الصلوات مجلیا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی الأمی العربی الہاشمی المکی المدنی الصادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان النبی یبعث الى قومه خاصا وبعثت الى الناس کافا او کما قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت عقیدت سے نجات اور بخشش کی کامل امید سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور وصلی علی روضۃ سیدنا محمد فی الریاض وصلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد وصلی علی اصحاب سیدنا محمد فی الاصحاب۔ دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ، پورا درود آپ کی آل کا ذکر ضرور کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود پاک میں کنجوسی نہیں، عجب فیض ہے اور عجب ہی فیض ہے، عجب فیض ہے۔ میرے نبی کی رحمت کا بلال درود ان پہ پڑھتا ہوں، رحمت مجھ پہ برستی ہے۔ دلوں کا غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ خدا سے جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے بائی فقیروں نے شہنشاہی، گدا کو شاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے،
رحم ان کو سکھاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا، امام الانبیاء بن کر تاج ختم نبوت کا سجا کے سر پہ جو آتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ شب اسرا کو تم دیکھو جو کی پرواز آقا نے، ارے عرش کے پار جاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ محبت سے یہ لب میرے ملیں دو بار آپس میں، محبت سے یہ لب میرے ملیں دو بار آپس میں، ارے زبان پہ جب بھی آتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ عزیز دوستو، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیو، بزرگو، دوستو، اسٹیج پر علاقہ آباد کے مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں، اہل علم حضرات، ان کو سبق سنانے کی نیت سے، اور چونکہ دیہات کا ماحول ہے، دیہاتی مجمع کو سامنے رکھتے ہوئے دقیق کی بجائے سادہ گفتگو کرنا چاہوں گا اشتہار کے عنوان کے مطابق۔ دعا فرمائے مالک کائنات رب الارض والسماوات، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو، مجھ نچیز طالب علم کو شرح صدر سے لب گشائی کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق لم یزل زبان سے بھی ایسے جملے نکلوا دے جو میری اور آپ کی ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ عزیز دوستو، اشتہار کا عنوان ہے محبوب کائنات۔ عنوان خود تعارف کروا رہا ہے، کتابی زبان میں محبوب کی اضافت کائنات کی طرف کر دی گئی ہے، اور اسے تھوڑا سا اگر بری کر لیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے ایک کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ پیچھے سے کریں گے، لکھنے میں محبوب پہلے، ترجمہ کرتے وقت کائنات پہلے آئے گی۔ محبوب کائنات کا معنی ہوگا کائنات کا محبوب، کائنات کا محبوب۔ کائنات میں صرف انسان نہیں ہے، اس کائنات میں جنات بھی ہیں، اس کائنات میں حیوانات بھی ہیں، اس کائنات میں جمادات بھی ہیں، اس کائنات میں نباتات بھی ہیں، اس کائنات میں حشرات بھی ہیں، اس کائنات میں سورج کی چمک بھی ہے، چاند کی دمک بھی ہے، ستاروں کی جگمگاہٹ بھی ہے، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا نظام بھی ہے، اس کائنات میں دن کا اجالا بھی ہے، رات کی تاریکی بھی ہے، اس کائنات کو کھولے تو شمس و قمر بھی ہے، شجر و حجر بھی ہے، بر و بحر بھی ہے، شام و سحر بھی ہے، لوح و قلم بھی ہے، آسمان اور فلک کی بلندی بھی ہے، زمین اور اس کی پستی بھی ہے، پہاڑ اور ان کا استقلال بھی ہے، سبزے اور ان کی مہک بھی ہے، گلاب اور اس کا رقص بھی ہے۔ کھولتے جاؤ تو بات پھیلتی چلی جائے گی۔ خلاصہ یہ بنتا ہے جب ہم نے کائنات کی اضافت، محبوب کی اضافت کائنات کی طرف کر دی تو محبوب کائنات کا لقب بتا رہا ہے اس کائنات کے ذرے ذرے کے یہ محبوب ہیں، کوئی نہیں جس نے ان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو۔ ہر ایک کی محبت کا انداز انوکھا ہے۔ جب میں احادیث کی طرف جاتا ہوں تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کائنات کے رب نے مصطفیٰ کو جو حسن عطا کیا وہ رب نے سارا کائنات پہ واضح کیا ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا سارا حسن تو کائنات کو رب نے دکھایا ہی نہیں ہے۔ اگر سارا ظاہر ہو جاتا تو کائنات میں کوئی آنکھ اس کی طاقت نہ رکھتی کہ نبی کے حسن کو دیکھ پاتی، کسی میں یہ ہمت ہی نہ ہوتی
نبی کے حسن کو پوری طرح اپنی آنکھوں میں وہ جذب کر سکتی. رب نے حضور کے سارے حسن کو ظاہر نہیں کیا. کائنات کی ساری بلندیاں جب پھیلاتے جائیں, رونقوں کو پھیلاتے جائیں, اگر سمیٹے تو ساری کی ساری بلندیاں نام مصطفیٰ میں سمٹ جاتی ہے. ساری کی ساری بلندیاں میں آپ کے آقا کی عظمت کی دھول بن جاتی ہے. آئیے اس کائنات میں رہنے والی مخلوقات تو بے شمار ہیں, ان میں سے جو چند نمایاں ہے ان کا تذکرہ کر کے اپنے محبوب کی سیرت میں اپنا نام لکھوانا چاہوں گا. اس کائنات کے طبقے میں سب سے بڑا طبقہ جو میں اور آپ جس سے تعلق رکھتے ہیں وہ انسانیت کا طبقہ ہے. یہ سب سے بڑا میں نے قصداً اور جان بوجھ کے کہا ہے, اس لیے کہ وجود کے اعتبار سے اگرچہ پہاڑ بڑے ہیں, آسمان بڑا ہے, زمین بڑی ہے, لیکن خلاق لم یزل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کے انسانیت کی عظمت کو بیان کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کے انسانیت کے طبقے کی عظمت کو بیان کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے اپنی خلافت کا کام پہاڑوں میں نہیں جاری کیا. اپنی خلافت کا تاج اللہ نے آسمانوں کو نہیں دیا. اپنی خلافت کا تاج پروردگار عالم نے طبقہ انسانیت کو دیا ہے. تو اس کائنات میں عظمت کے اعتبار سے جو سب سے بڑا طبقہ سامنے آتا ہے وہ انسانیت کا طبقہ ہے. آئیے محبوب کائنات کو سامنے رکھ کر کائنات کے سب سے بڑے طبقے کی بات کرنے لگا ہوں کہ میرے نبی جیسے کائنات کے ذرے ذرے کے محبوب ہیں, کائنات میں ایک طبقہ انسانیت کا بھی ہے. حضور انسانوں کے بھی محبوب ہیں. پھر انسانوں میں کیا اپنے کیا بیگانے, کیا مسلم کیا غیر مسلم, مسلمان تو ہے ہی ہے جو آقا کے اشاروں پہ کٹ مرنے کے لیے تیار, لیکن 1400 سال کی تاریخ شاہد اور گواہ ہے بیگانے بھی نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں. اگرچہ کلمہ نبی کا نہیں پڑھا لیکن زبانوں پہ ترانے محمد مصطفیٰ کے ہیں. ابھی دور نہ جائیے, حال کریم میں ایک پادری اور عیسائی میں دی 100 نامی کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا مطلب یہ ہے, اس پادری نے کہا میں نے اپنی ساری زندگی تحقیق اور ریسرچ میں گزاری کہ اس دنیا کے سب سے بڑی عظیم شخصیات کون ہیں جن کو اس کائنات میں سب سے زیادہ انقلاب کا منبع کہا جائے. تو اس نے اپنی نظر اور اپنے مطالعہ میں اس دنیا کی 100 بڑی بڑی شخصیات کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی. اس کا نام دی 100 رکھا. جب یہ کتاب شائع ہو کر مارکیٹ میں آتی ہے تو اس عیسائی برادری مسیح برادری کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کتاب کا لکھنے والا مائی کہا وہ غیر وہ پادری ہے, مسیحیت سے تعلق رکھنے والا ہے. تو کھولتے ہیں دی 100 نامی کتاب میں پہلے نمبر پہ کس کو لے کر آتا ہے. جب وہ کتاب مارکیٹ میں چھپ کر آتی تو عیسائی شستر اور حیران رہ گئے کہ یہ کلمہ عیسیٰ کا پڑھتا ہے. لیکن فرسٹ اور پہلے نمبر پہ میرے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا سید الانبیاء اشرف الانبیاء اطیب الانبیاء اکمل الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اختم الانبیاء خطیب الانبیاء اعظم الانبیاء اعطل الانبیاء اشجع الانبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ ساقی کوثر شافی معشر سید الاولین سید الآخرین محسن انسانیت فخر آدمیت مرکز کائنات رونق کائنات وجہ کائنات حیبت کائنات محور کائنات منبع کائنات فیوز کائنات برکات کائنات انوارات کائنات وجہ کائنات وجہ تخلیق کائنات کا نمبر دی 100 نامی کتاب میں لکھنے والا مسلمان نہیں ہے, وہ عیسائی اور مسیح ہے. پہلا نمبر حضور کا رکھتا ہے. جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا مجھے انصاف کہنے پہ مجبور کرتے ہو,
क्या अपने और क्या बेगाने। आइए जरा बात को थोड़ा सा आगे ले चलूं। मैंने मोटे मोटे चंद तबकात का जिक्र करना है। यकीन जानिए अगर इंसानियत के तबके की बात की जाए, उलमाए किराम समझते हैं ये एक मुस्तकिल मौजू है। क्या हिंदू, क्या पंडित, क्या ईसाई, क्या सिख, क्या मजूसी, क्या पारसी, सब के सब कलमा किसी और का पढ़ते हैं, सनाए मोहम्मद मुस्तफा की गाते हैं। आइए किस किस गिरा को खोला जाए, किसकी मोहब्बत को बयान करूं कि इन्होंने प्यार कैसे किया। आइए चंद एक मिसालें। ये सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी है। जनाब सैयदना फारूक आजम का दौर है। तारीख इब्ने असाकिर में ये अलामा इब्ने असाकिर ने रिवायत को नकल किया। इंताकिया नामी बादशाह उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत को लेकर पहुंचे हैं। बहुत लंबा एक मुकालमा होता है। उस तागिया नामी बादशाह ने आपकी खूबसूरत जवानी, हुस्न जमाल और जलाल को देखा। आपकी हाजिर जवाबी को देखकर हैरान होकर कहने लगा, ओए अब्दुल्ला मेरी मजहब ईसाईयत कबूल कर ले। आइए रिवायत के अल्फाज पढ़ के सुनाऊं। हल्ला का अंत नस्सरा, क्या तेरे लिए ये मुमकिन है तू दामने मोहम्मद को छोड़ और मसीहियत और ईसाईयत में आ जा। हल्ला का अंत नस्सरा, क्या तेरे लिए मुमकिन है कि तू नसरानियत कबूल कर ले। और उसके साथ कहने लगा, अपनी आदि बादशाह तेरे नाम कर दूंगा। आओ दोस्तों, सीरत के जलसों में सिर्फ वक्ती वावा और नारे लगा के ना ले जाइए। खुदारा इन जुमलों को दिल में उतारिए। एक में और आप हैं हुजूर के साथ मोहब्बत का दावा भी करते हैं, 5 रुपए के ऊपर अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। एक मुर्गी के ऊपर झूठी कस्में उठाकर अपने ईमान का जनाजा उठा लेते हैं। बल्कि मुर्गी तो बड़ी दूर की बात, अंडों के ऊपर झगड़े हो जाते हैं। एक पलाट के ऊपर भाई भाई का दुश्मन बन के झूठी कस्में उठा के ये नहीं देखता हशर में मोहम्मद मुस्तफा के सामने होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ईमान का क्या बनेगा। आइए सीरत के जलसों का फायदा यही है, हम यहाँ से कुछ सीख के जाएं। मौलाना ने इतना खर्चा ही नहीं किया। इसका एक मकसद है, सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब उस बादशाह की बारगाह में सामने रखा जाता है, उस तागिया नामी बादशाह ने आदि सल्तनत की बात की तो आप फरमाने लगे, अरे बादशाह तेरी भूल होगी, तू आदि सल्तनत की बात करता है कि मैं महबूबे कायनात को छोड़ दूं, आदि सल्तनत को ले लूं, अपने नबी को पीछे कर दूं। याद रख, लौ आतैतनी जमीअ मा तमलिकु व जमीअ मा मलकतहुल अरब। तरीके अल्फाज पढ़ रहा हूं, तू तो अपनी आदि सल्तनत की बात करता है। अगर मुझे जमीअ मा तमलिकु, जहां तक तेरी बादशाह का टूटी बोलता है, तो सारी की सारी बादशाहत भी मेरे नाम कर दे। वह जमीअ मा मलकतहुल अरब, और सारी वो बादशाहत जिसके अहले अरब मालिक हैं वो भी मेरे हवाले कर दे। और मुझे ये कहे मैं अपने नबी की मोहब्बत से हाथ उठा लूं, अपने नबी से बेगानगी इख्तियार कर लूं, वो भी कितनी दी अंतर फताई आंख झपकने की मिकदार। याद रख, मैं सल्तनतें ठुकरा सकता हूं, मोहम्मद मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ सकता। बादशाह तैश में आ गया, गुस्से में आ गया, क्योंकि ये वर्षा भी किसी किसी को मिलता है और बाज वो हैं जो नोट देकर मसले बदल देते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह याद रखें, खुश नसीब हो आप, मेरा आपका ताल्लुक उस काफिला देवबंद के साथ है जो यहाँ शकरगढ़ में महदूद नहीं, सिलसिला मिला हुआ है। ये उन्वान नहीं, वगरना मैं सनदन आपको सुनाऊं। हमारी एक एक सन यहाँ से लेकर वो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक जाती है।
इरशाद अलीउल्लाह से लेकर मेरे काफिले का सिलसिला नसब हजरत इमाम बुखारी तक जाता है, इमाम बुखारी से लेकर गुंबद खजरा तक जाता है। हजरत थानवी के पास बंदा एक आया नोट तोड़ों का लेकर, उस वक्त में तोड़े के अंदर कितने नोट होंगे, कितनी रकम होगी। कहा हजरत जी है थोड़े वास्ते हदिया थोड़ा जहा। उसे क्या पता था ये देवबंद वाले हैं। कहा भाई पहले बताओ रिश्वत के तो नहीं है, हराम तो नहीं है, किस कमाई से लाए हैं? ओ बाबा जी इस गल नूं छड्डो, इन्हां तरोड़े ने नोटां दे फड़ो तुसीं। फरमाया नहीं पहला दस। जब वो गुस्से में आया कहने लगा मौलवी जी इन्ने नोट देने वाला बंदा कोई नहीं लभना। हजरत ने कहा इधर आ जरा, कंधे पे हाथ रख के कहा इन्ने नोटां ठुकराने वाला मौलवी भी कोई नहीं लभना। हमारा ताल्लुक उस काफिला के साथ है। ये उन्वान नहीं है काबिरीन देवबंद की खिदमत। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहबी का जवाब, तू क्या चाहते है? दौलत देकर अपने नबी को छोड़ दूं? मैं इंसानियत के तबके की बात कर रहा हूँ। महबूबे कायनात, ये सारी कायनात के जर्रे जर्रे के महबूब हैं। उसको गुस्सा आया, तैश में आया, जल्लाद को बुलाया, कहा इसे तख्तेदार के ऊपर लटका दिया गया। कहा तीर लगाओ, लेकिन याद रखना तीर इसके जिस्म में पेवस्त ना हो, बल्कि दाएं बाएं कंधे के करीब से गुजरे, दोनों पांव के दरमियान से गुजारो, टार्च करो ताकि ये तसब्सुब में आ जाए, इसका ईमान हचकुचोले खाए और मेरी तरफ आके दामने मुस्तफा को छोड़ दे। उसे क्या पता था ये लाख और मलाक का पुजारी नहीं है, ये तो महबूबे कायनात को मानने वाला। ऐसे किया गया, लेकिन क्या मजाल है कि इनके ईमान में कोई कमी आई हो। जूं जूं तीर लग रहे हैं तू ईमान भड़क रहा है, तू ईमान का पैमाना तेज से तेज हो रहा है। मुझे कोई इसी तरह का मंजर हजरत मौलाना शेखुल तफसीर मेरे जद्दे पीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह में नजर आती है। आपको जब अंग्रेज ने बर्फ के बुलाकों के नीचे लिटाया और ऊपर और नीचे बर्फ के बुलाक रखे, आपने कहा अंग्रेज साम्राज्य सुन, तू बर्फ के बुलाकों में लिटा के शायद ये समझे कि लाहौरी ठंडा हो जाएगा। याद रख जूं जूं बर्फ बढ़ती जाती है लाहौरी का ईमान गर्म होता जाता। हमें ना कहा करो ना मौलवी ने कीता की है, ये उन्वान नहीं है प्यारो, लेकिन अपने बड़ों का जिक्र करना मैं हलाली बेटा होने के लिए इसे जरूरी समझता हूं। उलाई का आबाई फजीना बिमिस्लिहिम, ये मेरे बाप दादा हैं, लाओ किसी के पास ऐसा किरदार है तो मैदान में आओ। खैर आगे सुनिए, बात से दिल बाहर निकल जाती है, जाना कहीं और जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा साहमी के साथ ये भी किया गया। तीर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, लेकिन मजाल है ईमान में कोई कमी आई हो, कहने लगा वापिस लाओ। काफिर कहे करवा और होता है, ईमान लूटता है, क्योंकि शैतान है ना। अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, अहले ईमान अल्लाह के रास्ते की कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीली तागूत, काफिर तागूत के रास्ते पे चलता है। कमरा बंद कर दिया गया, खूबसूरत नौजवान लड़कियों को छोड़ दिया गया। जब लड़की अंदर गई कुफल और ताला लगा दिया गया, कहा हरबे इस्तेमाल करो, इनके ईमान पे हमला करो। उसकी भूल थी, भला जिन आंखों ने बद्दुहा का मुखड़ा देखा हो, वो तेरी जैसी औरतों की तरफ भले कहां देख सकते हैं। ना ऐसा चेहरा,
न ऐसी जुल्फे न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसा चेहरा न ऐसी जुल्फे न यूं किसी पे शबाब होगा। अरे जवाब होंगे सभी के लेकिन मुस्तफा का ना कोई जवाब होगा। वो 3 दिन के बाद दरवाजा खोला गया, वो मुंतजिर थे, पता नहीं क्या मामला हुआ होगा, ईमान की सतह कहाँ कमजोर होगी। जब देखता है तो उस औरत ने जो बरहना अंदाज में गई थी पर्दा किया हुआ है। कहने लगा तुझे हुआ क्या? वो बोल के कहने लगी अय्युहल मालिक इला अय्न अरसलतनी इला हजरिन औ हदीदिन ला यस्मउ व ला यंजुर। अरे बादशाह तू पगला तो नहीं? इला अय्न अरसलतनी, तूने मुझे कहाँ भेज दिया था? इला हजरिन, वो तो कोई पत्थर है। इला हजरिन, वो तो कोई पत्थर है। औ हदीदिन, या वो लोहा है। मैं बुलाती रही, वो देखता नहीं था, मैं मुतवज्जे करती रही, उसने तवज्जो नहीं की। उसने कहा वजह क्या है? कहने लगी वजह ये है जिन आंखों में महबूबे कायनात का चलाओ वो दुनिया के चेहरे नहीं देख सकते। कहने लगा और हरबा, अब गुस्से से भटका, कहने लगा तेल का कड़ाहा गर्म किया जाए। शकरगढ़ के मुसलमान भाइयों, मैंने सुना लिया है, कहना आसान है, आपने सुन लिया, कहना बहुत आसान है, सुनना आसान है। जरा इन हालात को दिल में लाओ, या उन मजलूमों की दास्तान सुनो जो काल कोठरियों में आप भी कलमे हक कहने की तलाश में सजाएं और सौंपतें बर्दाश्त कर रहे हैं। जिन आंखों ने 1450 साल के बाद चेहरे मुस्तफा नहीं देखा, वो कट जाते हैं, नबी के साथ सौदाबाजी नहीं करते। मैं सहाबा को कैसे मान लूं कि वो बिक गए हो? उसने कहा तेल का कड़ाहा गरम करो। गरम किया गया, एक साथी को सामने रखा, जाते ही हड्डियां अलग हो गई, मांस अलग हो गया, दूसरे को डाला। अब आपकी बारी थी, जाने लगे। फबका, आंखों में आंसू छलक पड़े हैं। उन्होंने कहा बादशाह सहमत काम बन गया, ये डर गए हैं, रो पड़े हैं। बादशाह ने कहा दोबारा बुलाओ। दोबारा बादशाह के सामने, तालिया के सामने आपको ले जाया जाता है। बादशाह कहने लगा ए अब्दुल्ला, मैं तो पहले कहता था अपनी जवानी पे तरस खाओ, आपकी जिंदगी आपको देता हूँ, मैं तो आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा शायद बादशाह तू मेरे निकलते हुए आंसुओं का मतलब गलत समझा है। ला जज़अ मिनल मौती वला सबाबत मिन हयाती, मुझे जिंदगी का कोई शौक नहीं, मौत का कोई खौफ नहीं, रोता इसलिए हूँ आज ही तो वक्त है महबूबे कायनात के लिए खून से मोहब्बत का इजहार करने का। अब तक हमने लफ्जों में बताया ये हमारे महबूब हैं, आज खून दे के बताऊंगा, जान दे के बताऊंगा। मुझे जान प्यारी नहीं, आमीना का लाल प्यारा है। जान प्यारी नहीं, आयशा का दुल्हा प्यारा है। जान प्यारी नहीं, सिद्दीक उमर फारूक उस्मान अली का लीडर प्यारा है। बादशाह ने कहा फिर इरादा क्या है? कहने लगे रोता इसलिए हूँ फकुन्तु अश्तही अन यकूना बिआदादी कुल्ली शारती फी जसदी नफ्सुन, के सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक ये एक जान बनती है। फकुन्तु अश्तही, मैं तो ये चाहता हूँ बिकुल्ली शारती फी जसदी नफ्सुन, मेरे जिस्म में जितने बाल हैं हर बाल के बराबर मेरी जान होती, सारी की सारी जाने मोहम्मद पे कुर्बान करके दुनिया को बता देता कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इंसानियत के तबके की कहां तक दास्तान ले जाऊं? यहाँ हर फूल ही निराला है। मैंने तो आम सहाबी की बात की, अभी तो आयशा के बाबा अबू बकर की बात सुनाई नहीं। वहां और अंदाज है, यहाँ और है। आइए इख्तिसार के साथ अगर सहाबे पैगंबर की मोहब्बत को देखा जाए
तो बदर का मैदान गवाही देता है। इस वक्त सहाबे रसूल से मशवरा लिया जा रहा है। हत्ते मिकदाद बिन अस्वद खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह वल्लाही मा नकूलू कमा क़ालत बनु इस्राईल अली मूसा, हम असहाबे मूसा नहीं हैं जो मूसा से ये कहें फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, मूसा तू जा, तेरा रब जाने, हम तो चूरी खाने वाले मजनू यहाँ बैठे हैं। ये वो थे वल्लल्ना अलैहिमुल गमामा व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना व सलवा। कुरान में तेरे अंदाज पे कुर्बान जाऊँ, तभी तो मेरा काफिला देवबंद के सरखेल सबक देते हैं। नबी की अज़मत के लिए डोल की तप तप की जरूरत नहीं, आका की सीरत के लिए नाच और रक्स की जरूरत नहीं, लड़कियों को बेहिजाब मीलाद के नाम पे बाहर लाने की जरूरत नहीं। नबी की अज़मत को पढ़ता हो, कुरान पढ़ता जा, मोहम्मद का शान समझता। आसमानों के बादलों ने साया जिन पे किया था, मन सलवा जिनके लिए आता था। अगर कहते लिबास चाहिए तो कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस्म का लिबास मौसम के एतबार से तब्दील होता, गर्म में गर्म बन जाता, सर्द में सर्द बन जाता। पानी की जरूरत पड़ी, इधरी भी आसा कल हाजारा, अल्लाह के नबी कदीम आपने आसा तो लगाओ, अल्लाह पत्थरों से चश्मों को जारी कर देते। ये वो थे जिन्होंने आसमानी नेमतों को देखा, लेकर जब जान देने की बारी आई तो नबी को तन्हा छोड़ दिया। पलट के जब मैदान बदर को देखता हूँ, हज़रत मिकदाद ने नबी के सामने यही तो कहा था, अल्लाह के रसूल हम बनी इस्राइल की तरह नहीं कहेंगे, वलाकिन्ना नुकातिलु ऐ यमीनी का वन शिमाली का व बैन यदैक व खल्फा का। नबी आप इशारा तो करो, आगे भी परवाने होंगे, पीछे परवाने होंगे, दाएं हाथ के जानिसार होंगे, बाएं आपके जानिसार होंगे। हुजूर आपके लिए कट मरने को तैयार। हज़रत साद इब्न मुआज़ उठे और बोल के कहने लगे या रसूल अल्लाह सिल हिबाला मन शेता वक्ता हिबाला मन शेता व साली मन शेता व आदि मन शेता। अल्लाह के रसूल जिसकी रस्सी तोड़े आपकी मर्जी, जिससे जोड़े आपकी मर्जी, जिससे जंग करें आपकी मर्जी, जिससे सुलह करें आपकी मर्जी। वल्लाही लविस्ता रस्ता बिना हाज़ल बहरा, अल्लाह के नबी अगर आप समंदर में कूद जाने का हुक्म करे, आपके कहने में देर हो सकती है, असहाबे मुस्तफा के जाने में देर नहीं हो सकती। कहने वाला कहते हैं ये पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का, ये पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था। इस लश्कर का सरदार काली कमरी वाला था। इंसानियत के तबके को कहां तक खोलो। उकवा बिन नाफे अफ्रीका के जजीरों को काटते काटते वहां तक पहुंचे कि वो जंगल जिसके अंदर कोई इंसान जाके कभी जिंदा वापस नहीं आया। टीले पे खड़े हुए लोगों ने कहा हजरत अपने सफर के इरादे को मुलतवी करो, आगे इंसानी जिंदगी का तस्वुर नहीं है। देहाती भाइयों, मैंने कसर इन वाक़ियात को शुरू किया है ताकि मेरे आपके अंदर ईमानी हरारत भी बढ़े। महबूबे कायनात के साथ मैं और आप भी अपने ईमानों का मवाजना करें। हमें कितनी मोहब्बत है, नाम से दावा करना बिल्कुल आसान है, लेकिन अमली जामा पहनाने की कोशिश कीजिए। आइए इस साल भी इरादा करिए, मिलाद मनाकर नहीं, मिलाद वाले को अपना कर राजी करने की कोशिश करें। आपने उस समंदर के उस जंगल के टीले पे खड़े होकर कहा, और सुनो अय्यतुहस्सिबाउ वल किराम, ऐ जंगल के दरिंदों, ऐ जंगल के खूनखार भेड़ियों, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। और अपनी तरफ से ऐलान नहीं कर रहा, हुजूर का पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूँ। मैं ऐलान करता हूँ फखरुजू मिन हाज़िल गाबा, इस जंगल से कूच करो, यहाँ से निकल जाओ। आपने आवाज लगाई थी, मुहर्रिखीन लिखते हैं बड़े जानवर से लेकर छोटे जानवर तक अपनी पुश्तों पे अपने बच्चों को सवार करके जंगल को खाली कर रहे हैं। पैगंबर के सहाबी जंगल को तय करते हुए आगे पहुंचे। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने जब आगे देखा
اب زمین کی سطح ختم ہو گئی، بحر ظلمات شروع ہے، کالا پانی آگے شروع ہے، زمین کی سطح ختم ہو گئی۔ اپنے گھوڑے کے آگے والے 2 پاؤں وہ پانی کے اندر ڈال کے کہا اللہ فشار فشار فشار، اے ربا گواہ ہو جا تیرے نبی کی پیغام کو پہنچانے کے لیے زمین تو ختم ہو گئی لیکن محمد کے صحابی کا جذبہ اب بھی جوان ہے۔ یہ حضور کی محبت میں کہاں تک پہنچے، کس کس گرہ کو کھولا جائے، ایک مستقل بحث ہے۔ حضرت بلال حبشی کا آنکھ کے انگاروں پہ تڑپنا دیکھ لیجئے، سیدہ سمیہ کے ٹکڑوں کو دیکھ لیجئے، حضرت زنیرہ کی نکلتے ہوئی آنکھوں کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو فقیہ کی ادھرتی ہوئی چمڑی کو دیکھ لیجئے، اصحاب مصطفیٰ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیجئے، حضرت حبیب ابن زید انصاری جو ختم نبوت کے پہلے مجاہد ہیں، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، کلائیوں کو کاٹ دیا گیا، بازوؤں کو توڑ دیا گیا، لیکن ایک ایک ٹکڑے سے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ الغرض طبقہ انسانیت کو دیکھتا ہوں تو کیا اپنا کیا بیگانہ، سبھی کے سبھی حضور کی محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلے، ایک ایک مثال آپ کی اور اپنی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے، موضوع بہت زبردست بہت لمبا ہے، اپنے علماء بھائیوں کو ٹچ دے رہا ہوں، وہ اس کو کھول کر بیان فرما سکتے ہیں۔ انسانوں کے بعد دوسرا بڑا طبقہ جنات کا نظر آتا ہے۔ سورہ جن کو پڑھ لیجئے، لیلۃ التعریس کا واقعہ پڑھ لیجئے، وادی نخلہ کو پڑھ لیجئے۔ میرے نبی جب نماز میں بآواز بلند اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیا خوب منظر ہوگا جب قرآن والے کی زبان پہ ہوگا، جب قرآن صاحب قرآن کی زبان پہ ہوگا۔ قرآن تو ایک خطبہ ہے، میرا نبی اس خطبے کا خطیب ہے۔ قرآن ایک تقریر ہے، میرا نبی اس تقریر کا مقرر ہے۔ قرآن ایک واعظ ہے، میرا نبی اس واعظ کا واعظ ہے۔ ارے قرآن میں پیغام ہے، میرا نبی اس پیغام کا پیغام بر ہے۔ قرآن ایک رسالہ ہے، میرا نبی اس رسالے کا رسول ہے۔ قرآن کو نابعون کہتے ہیں، میرے نبی کو نبی جن کہتے ہیں۔ انا سمینا قرآن عجبا، جنوں کی جماعت نے حضور کی زبان سے قرآن سنا، پھر واپس گئے اور بڑی جنوں کی جماعت کو لے کر آئے اور حضور کی آہت پہ اسلام قبول کر کے آپ کا کلمہ پڑھ کے حضور کے جن صحابی بن گئے۔ انسانات میں بھی نبی کی صحابیت کا سلسلہ، جنات میں بھی وہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر کے پیغام کو لے کے آگے گئے۔ اور سنو شکر گڑھ والوں، جو پہلا پیغام جنوں نے میرے نبی سے سمجھا، وہ فرمایا لن نشرک بربنا احدا، ہم نے پہلا پیغام یہ پڑھا ہے، کر تو سکتے ہیں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ کیا جنات میرے نبی کی عظمت کا دم بھر رہے ہیں۔ جنات کے بعد، انسانات کے بعد حیوانات کا ذرا رخ کیجئے، عجیب منظر ہے۔ حیوانوں نے نبی سے محبت کی۔ ابھی 12 سال کی عمر ہے جب اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کر رہے ہیں۔ واقعہ بہت لمبا ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ وہ اپنی بالا خانے پہ عبادت کرنے والا انتہائی عمر رسیدہ پادری، جسے دنیا بحیرہ راہب کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے کہا اس قافلے والوں کو روکو، روک دیا گیا۔ آج اس کے کلیسا کے لوگ پادری حیران ہیں۔ حضرت بڑی جلدی نیچے آگے، آج سارے معمولات چھوڑ دیے، سارے وظائف چھوڑ دیے۔ ہوا کیا؟ جب وہ پادری نیچے آیا، کہا اس قافلے والوں کو بلاؤ۔ بلایا جاتا ہے، آپ کی دعوت کرنے لگا ہوں۔ لوگ شست و حیران سے 1000 مرتبہ قافلے گزرے، یہ تو کبھی نیچے نہیں آئے۔ آج عجیب منظر ہے، یہ قافلے والوں کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جی سب آگے، کہا سب آگے۔ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے؟ برات دلہے کے بغیر تو جچتی نہیں۔ وہ ہستی کہاں ہے جس کے لیے میری آنکھیں منتظر ہیں؟ سب آگے، کہنے لگے جی سب آگے۔ کہا آپ غلط بیانی کر رہے ہو، سب نہیں آئے۔ کہا ہاں، ہمارا ایک نوجوان
नौजवान बच्चा है, उसके साथ और अफराद को छोड़कर हम अपने जानवरों के पास छोड़कर आए हैं। कहा नहीं, बुला के लाओ। जब हुजूर को बुलाया जाता है तो टिकटकी बांधकर आपके चेहरे अनवर के नवारात को देखने लगा। फिर आपकी चारपाई को उस जगह पे रखा गया जहाँ पे दरख्त का साया नहीं था, बाकी काफिला दरख्त के साये में था। हुजूर की चारपाई और मसनद को दूर में रखा गया। दुनिया ने यह मंजर देखा जैसे हुजूर दूर की जाने आते हैं, वो सारा का सारा दरख्त उठता है और यूं साहिबा बन के मेरे नबी पे साया फगन हो जाता है। उस दरख्त ने सारे अपनी शाखों से नबी पे साया करके दुनिया को बता दिया, सिर्फ इंसानात के महबूब नहीं, जिन्नात के महबूब नहीं, ये तो दरख्तों नबातात के भी महबूब है, ये तो हमारे भी महबूब हैं। तुम किन की बात करते हो? फिर बोल के कहने लगा, ये आ रहे थे, मैंने किसी दरख्त और शजर और हजर को नहीं देखा जो इनके सामने अपने अपने अंदाज में झुककर इन्हें अकीदत का सलाम ना पेश करता हो। हैवानात के तबके को देखता हूँ। हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे नबी ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। 100 ऊँटों की जब कुर्बानी की, 63 ऊँट हुजूर ने अपने हाथ से ज़बह किए। बाकी के लिए हज़रत अली से कहा, आप इनको ज़बह करो, आसान सी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। अब नबी के साथ, महबूब कायनात के साथ जानवरों की मोहब्बत का अंदाजा लगाइए। असहाब कहते हैं ऊँट को पकड़ना नहीं पड़ता था, रस्सी नहीं बांधनी पड़ती थी। नबी जब ज़बह कर रहे थे, एक ऊँट अभी लेटता, दूसरा खुद व खुद नबी के कदमों में जाता। हर ऊँट ये चाहता था मेरी गर्दन में अगर छुरी चले तो मोहम्मद के हाथों से चले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपने अंदाज से हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं। यहूदी ने हिरन को पकड़ा है, हुजूर करीब से गुजरे, हिरन अपनी जुबान में बोल के शिकायत करती है। महबूबे कायनात कहते हैं इसे छोड़ दे, इसके बच्चे भूखे हैं, दूध पिलाना चाहती है। आप अजीब बात करते हो, मुसलमानों के नबी हो, इसको छोड़ दूं? सारा दिन मार मार के तो पकड़ा है। हिरन की दौड़ भी आप समझते हैं बहुत ज्यादा है। हुजूर कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ, तू छोड़, दूध पिला के वापस आएगी। अजीब बात है, सारा दिन जिसको पकड़ने पे लगाया अब बगैर पकड़ने के खुद आएगी। फरमाया पहले तू पकड़ता था, अब जमानत मोहम्मद उठा रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूध पिला के वापस आती, हुजूर के कदमों में आ गई। उस यहूदी ने देखा जिसके अंदर शऊर फहम नहीं, अगर ये हुजूर से मोहब्बत का दम बढ़ रही है तो मैं नबी की मोहब्बत में पीछे क्यों रहूं। कहा कमली वाले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के मुझे भी अपने गुलामों में शामिल फरमा दीजिए। कहीं पर गारे सौर का मंजर देखिए, ये भी तो जानवर हैं। कबूतरी अंडे देकर हुजूर से मोहब्बत का इजहार कर रही है, मकड़ी जाला बनाकर नबी से मोहब्बत का इजहार कर रही है। और कहीं पे सईदा उम्मे माबद की कमजोर बकरी नजर आती है। किस किस जानवर को देखूं, जैसे इंसानों में हर इंसान नबी से मोहब्बत की बात करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा हमें दूध चाहिए। कमली वाले ये कमजोर बकरी है और कोई है नहीं। फरमाया तेरा काम है, इससे दूध निकलवाना मेरे रब का काम है। उस कमजोर बकरी पे हाथ फेर कर बिस्मिल्लाह पढ़कर दूध निकालना शुरू किया। कमजोर बकरी आज इतना दूध देती है, घर के सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म नहीं हो रहा। सवाल करता हूँ, ए बकरिए, तुमको चलने की ताकत नहीं थी, तेरे अंदर इतना दूध कैसे आया? बकरी भी कहती है जब मेरे ऊपर हुजूर का हाथ आया तो दूध निकाल के मैं भी बता रही हूँ, ये सिर्फ इंसानों के महबूब नहीं, जिन्नों के महबूब नहीं, ये तो हम हैवानों के भी महबूब हैं। आइए हैवानात के बाद थोड़ा सा आगे जल्दी नबातात को देख लीजिए जो जमीन से पैदा होते हैं। दरख्त और अशजार को देख लीजिए। ग़ज़वा उहद की बात है, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ाई कर रहे हैं। मैदान जंग में आपकी तलवार में दंताने पड़ गए, तलवार टूट गई। हुजूर के पास आए, कहने लगे अल्लाह के हबीब
दुश्मन तनतनाते फिर रहे हैं, मेरे पास तलवार नहीं मुकाबला करूं। आपने खजूर की एक टहनी दी, कहा इस शाख को ले जाओ। या रसूलल्लाह ये टहनी और शाख क्या करेगी? फरमाया जा, लड़ना तेरा काम है, इस शाख को तलवार से जरा तेज कर देना, मेरे रब का काम है। मैं महबूबे कायनात हूँ, नबातात और दरख्त भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं, ली तो शाख और टहनी थी, जब सफों में खड़ा हुआ वो टहनी तलवार से ज्यादा तेज बन गई। मैंने दुश्मनों की गर्दनों को उड़ाया, मैंने देखा ये टहनी शऊर कैसे आया, तो वो टहनी से तलवार बनकर, शाख से तलवार बनकर अपने अंदाज में जमाने को बता रही है, ये सिर्फ इंसानों के महबूब नहीं, हैवानों के महबूब नहीं, ये तो नबातात के भी महबूब हैं। अभी गालिबन ऊपर आवाज आ रही थी, आपने उस्तूने हनाना का किस्सा सुना, वो आसा जो नबी खुतबे के लिए इस्तेमाल करते, जब मिंबर बना खुतबा छोड़ा तो नबी की जुदाई में उस खजूर के तने ने रोना शुरू कर दिया। नबी ने जब सीने से लगाया तो उसके आंसू थम गए। वो खजूर की टहनी रो रो कर हुजूर के साथ मोहब्बत का इजहार कर रही है। हज़रत उकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत कतादा बिन नुमान हुजूर के पास आए, नमाज इशा पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ के अभी फारिग होकर घर कुछ दूर था, जाने लगे, आसमान पे काली घटाएं छा गई, बारिश का मौसम बन गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। कहा अल्लाह के हबीब घर बड़ी दूर है, दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ते में खौफ ने मेरे दामन को तंग कर दिया है, हर तरफ काली घटाएं हैं। अल्लाह के हबीब ने उनके हाथ में एक शाख दी, एक टहनी दी, फरमाया इस टहनी को ले जाओ, जब तू रास्ते पे चलेगा तो तेरे आगे भी नूर होगा, पीछे भी नूर होगा, रास्ते में कोई काली चीज आएगी उसको टहनी से हटा देना, उसकी तरफ तवज्जो न करना। वो सहाबी रसूल हज़रत कतादा बिन नुमान नबी की हाथों से ली हुई टहनी को जब रास्ते की तरफ मंजिल में रवा दवा होते हैं, जू चल रहे थे, नूर रोशनी बढ़ रही थी, आगे भी नूर पीछे भी नूर, और अंधेरा छट रहा था, उजाले बढ़ रहे थे। ये देखा क्या है, वो टहनी तार से ज्यादा तेज बन गई। मैंने शस्त्र होकर टहनी से सवाल किया, तेरे अंदर नूरानियत कैसे आई, तेरे अंदर उजाले कैसे आए? तो टहनी अपने अंदाज से बताती है, मैं उजाला देकर दुनिया को बताती हूँ, ये महबूबे कायनात के हाथ लगे हैं। वो इंसानों के महबूब नहीं, जिन्नात के महबूब नहीं, हैवानात के महबूब नहीं, वो तो नबातात के भी महबूब हैं। आगे चलिए, अगर जानवरों को लिया जाए बहुत लंबा मौजू है, नबातात को लिया जाए बहुत लंबा मौजू है। आइए अशजार के बाद अहजार को देखें, पत्थरों को देखें, कंकरों रेजों को देखें। शबे हिजरत का वाक़या आपके सामने है, बिस्तर पे हजरत अली को लिटाया, खुद बाहर निकले हैं, घर की चारों तरफ दुश्मन नलंगी तलवारों से खड़ा है। नबी ने अपनी मुट्ठी में कंकर लिए, यू कंकर फेंके हैं, वो कंकर क्या थे, वो तो एटम बम से ज्यादा बम के बरसे थे। तुम कंकर थे, तुम तो एटम बम कैसे बने? वो कंकरे अपने अंदाज में बताते हैं, हम भी हुजूर के साथ मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। बदर के मौका पर मेरे नबी ने एक मुट्ठी फेंकी, कुरान जिसे कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। नबी हाथ आपके थे, इन हाथों के पीछे ताकत परवरदिगार की, वो मैंने फेंकी है। वो कंकर अपने अंदाज में हुजूर से मोहब्बत का दम भर रहे हैं। बिल्कुल तेजी से गुजर रहा हूँ, अबू जहल के हाथ में कंकरों ने कलमा पढ़ के मेरे नबी से इसको मोहब्बत का दावा किया है, इसको मोहब्बत का इजहार किया है। आइए कंकरों के बाद आसमान की तरफ नजर उठाता हूँ तो चमकता हुआ सूरज नजर आता है। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस राविया है, खैबर के मौका पर मेरे नबी हजरत अली करमल्लाहु वजहा असदुल्लाह रजी अल्लाह सलामुल्लाह सलातुल्लाह की गोद में सर रख कर महवे इस्तराहत हैं। असर की नमाज हजरत अली ने नहीं पढ़ी, हुजूर की आंख खुली, सूरज गुरूब हो चुका था। कहा अली
نماز اثر پڑھی ہے، اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھی، آپ آرام کر رہے تھے، آپ کو اٹھانا برداشت نہ کیا، انتہا ہے محبت کی، فنا فی الرسول تھے، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، علی تیری نبی کی محبت میں تھا، اے اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں سورج کو واپس پلٹا دیجئے علی تاکہ نماز اثر ادا کر لے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا، وہ ڈوبتا ہوا سورج دوبارے سے واپس آتا ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہے ہم نے ٹیلوں اور پہاڑوں کے اوپر سورج کی کرنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ واپس پلٹا، حضرت علی نے نماز ادا کی، پھر سورج واپس گیا ہے۔ سوال کرتا ہوں تو چل رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، تو کبھی رکا نہیں، آج جا کے واپس کیسے آیا؟ تو سورج واپس آ کے انسانیت کو پیغام دیتا ہے یہ محبوب کائنات ہیں، انسانوں کے محبوب، جنات کے محبوب، نباتات کے محبوب، حیوانات کے محبوب، اور سورج بتاتا ہے یہ میرے بھی محبوب ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر کو یاد کیجئے، مشرکین مکہ نے کہا سچے نبی ہو تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ابھی انگلی کا اشارہ ہوا ہے، ایک ٹکڑا کر کے جبل ابی قبیس میں پہنچا ہے، دوسرا ٹکڑا جبل ابی کی کان پہ پہنچا ہے۔ کافر بار بار مشرک کپڑے سے اپنی آنکھوں کو مل رہے تھے کہیں ہم غلط تو نہیں دیکھ رہے، بار بار جب دیکھا باہر سے آنے والوں نے تصدیق کی محمد کے اشارے پہ چاند ٹکڑے ہوا ہے، یہاں بہت سے نکالتے ہیں ان کو حذف کر رہا ہوں، آج اگر آسمان کو بھی اشارہ ہوتا، میرا پیار یہ بتاتا ہے، عقیدہ یہ بتاتا ہے، آسمان بھی پاش پاش ہو جاتا، پہاڑوں پہ اشارہ کیا جاتا، وہ بھی ٹکڑوں میں بٹ جاتا، درختوں کو اشارہ کیا جاتا، جیسے وہ بارہا زمین کو چیر کر نبی کے دامن میں آئے، آج بھی ایسا ہوتا، باہر سے آنے والوں نے بھی تصدیق کی، لیکن جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو، قرآن کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، دیکھ کے بھی کہنے لگے یہ تو سحر مستمر ہے، یہ تو جاری رہنے والا جادو ہے، آپ نے ہماری آنکھوں کو آنکھ بندی کر دی ہے، نظر بندی کر دی، چاند ٹکڑے ہو کر سورج واپس آ کر اور درختوں نے چل کر زمین کو چیر کر دنیا کو بتایا ہے یہ کائنات کے ذرے ذرے کے محبوب ہیں اور درختوں کے محبوب ہیں، شجروں کے محبوب ہیں، بر و بحر کے محبوب ہیں، شمس و قمر کے محبوب ہیں۔ آئیے دوستو بات کو ذرا کسی نوک پہ لاؤں، میرے نبی نے جو آپ کو محبوب کائنات بنایا، قرآن کا یوں ہی دعویٰ نہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کائنات کے محبوب ہیں، ہر نبی علاقائی آیا، یہ لامحدود رسالت لے کر آئے، عالمگیر نبی بن کر آئے، آفاقی نبوت لے کر آئے۔ بڑے دکھ کی بات ہوگی، افسوس کی بات ہوگی، درخت تو نبی کو پہچان جائیں، ہرنی تو نبی کو پہچان جائے، گور تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، کنکرے اور ریزے تو حضور کو پہچانے، اور میں اور آپ اپنے نبی سے بیگانے ہو جائیں۔ دوستو جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں محب کا انداز، عمل، طریقہ بتاتا ہے یہ اپنے نبی کا چاہنے والا ہے، وہاں دعویٰ نہیں کرنا پڑتا۔ کیا ہمیں بھی حضور سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہولی بولیا جے آنے ہولی ہولی ذرا تو پتہ لگ گیا ہوں گل اپنے موضوع کی آ گئی۔ ایک جگہ بیان ہو رہا سی، بندے سارے نا باہر کھلوتے رہے، نوجوان سن چند بابے بابے اندر رہ گئے، جدو اینڈ آیا نا میں آخیا یار اندر آ جاؤ، بندے آتے ہیں مولوی یار وعدہ لے لینا ہے کہ نماز پڑھنی، ہوں ساڈے کول کی لے لینا ہے نماز پڑھنی، نام بھی نہیں آ رہا، وہ وعدہ لے لیں گے اس لیے ہم باہر کھڑے ہیں۔ اتاسی الرسول وانت تزعم حبہ فإن المحب لمن يحب مطیع، محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن عمل سے نبی کا دل دکھاتا ہے، یہ کیسی محبت ہے میرے رب کی؟ جس کو محبت ہوتی ہے وہ محبوب کے نام پہ فدا ہوتا ہے۔ آئیے آخری بات سمیٹ رہا ہوں، رب نے اپنے نبی کی محبت میں
नबी के पीछे चलने का हुक्म दिया है। सादे लफ्ज़ों में हमारे एक मौलाना, मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्हें बड़ी प्यारी मिसाल दी। कहने लगे कुरान में रब कहते हैं मेरे नबी की नकलें उतारो। नबी की बोलो यार थोड़ा जा, आप पहला बयान हो जाए बड़े चुस्त रही ने, जब अमली जिंदगी आ जाए बात आए तो हम खामोश हो जाते हैं। रब ने क्या मेरे नबी की, सारे बोलो भाई, आहिस्ता बोले, सारे बोले, वो बाहर वाले मेरे भाई बोल पड़े, अंदर वाले भी, नबी की देखो नबी चला कैसे, चलने में नकल उतारो, ये मोहब्बत है। नबी उठे कैसे, मोहब्बत में नकल उतारो। हुजूर सोए कैसे, नकल उतारो। हुजूर ने नमाज कैसे पढ़ी, नकल उतारो। नबी ने अकीदा क्या रखा, नकल उतारो। रबीउल अव्वल नबी ने कैसे गुजारा, नकल उतारो। खुशी नबी ने कैसे की, नकल उतारो। नबी ने तरीका क्या दिया, नकल उतारो, नकल उतारो। फिर उन्हें खुद ही सवाल किया कि मेरे ज़हन में सवाल आता है, दुनिया के लोगों की नकल उतारे तो लोग नाराज होते हैं, क्यों भाई? एक आदमी नबीने, आप नबीने की नकल उतारो, नाराज होगा कि राजी होगा? थोड़ा सा बोलो तो सही यार, ऊंची बोले तो अल्लाह अमल की तौफीक देगा, जज्बे से बोलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह मोहब्बत में इजाफा करेंगे। एक आदमी पाँव से लंगड़ा चलता है, आप उसकी तरह चलेंगे तो नाराज होगा, राजी? दुनिया के लोगों की नकल उतारे तो नाराज होते हैं। इधर रब खुद कह रहे फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, मेरे हबीब की नकल उतारो। अल्लाह माजरा क्या है, रब यही तो फलसफा समझाना चाहते हैं। दुनिया में किसी की नकल उतारोगे वो नाराज इसलिए होगा कि आप उसके ऐब की नकल उतारोगे, और नबी के लिए अल्लाह ने खुद हुक्म दिया नकल उतारो। क्यों? खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबी, यहाँ तो ऐब है ही नहीं। जिसकी भी नकल उतारोगे वो नबी की खूबी होगी, नबी का हुस्न होगा, नबी के महासिन होंगे, नबी के अनवारात होंगे। इसलिए मोहब्बत रसूल में खुदा के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। आज कहा जाता है ओ मसीह ताले कहते हैं असी सच्चे, ए मसीह ताले कहते हैं असी सच्चे, उधर जाइयो कहते हैं साड़ी गल मानो, ये कहते हैं हमारी बात मानो, जाए किस तरफ? मैं हर जगह पे अपना दर्द दिल रस करता हूँ, कहीं ना जाओ। कोई तरीका आपके सामने है, कोई काम आपके सामने है, इस काम को नबी के साथ मिला लो, इस काम को नबी के साथ मैच करके देख लो। अगर ये तरीका नबी के साथ मिलता है, अगर ये काम हुजूर जैसा है, तो आंखें बंद करके अमल करो। अमल करना आपका काम है, आपका बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींच के अपना दोस्त बनाना रब का काम है। बात बिल्कुल वाज़ेह है। मुझे दिल से बताओ, रबीउल अव्वल मेरे नबी की जिंदगी में आया क्या नहीं? ओ थोड़ा जा बोलो यार, ऊंची बोले। हुजूर की जिंदगी मुबारक 63 साल, 63 दफा रबीउल अव्वल आया होगा कि नहीं? सहाबा की जिंदगी में, आइम्मा की जिंदगी में, ताबईन की, तबा ताबईन की जिंदगी में आया या नहीं? तो वजह से बात समझना, लेकिन पहले दर्द दिल से गुजारिश कर लगा, ये मेरी आखिरी बात है, हर बात को फिरका वारियत में ना ले जाओ। थोड़ी सी हमारे मफाद के खिलाफ बात होती है, हम कहते हैं ए भाभी जो है, गुस्ताख जो है, फलाने जो है, उन्होंने फिर गल करनी सी। अल्लाह ने आपको फसाहम दी है, अल्लाह ने आपको शऊर दी है, अकल दी है, ज़हन दिया है। कपड़ा लेने जाओ, 10 थान नीचे उतारते हो, टटोल टटोल के देखते हो 1 नंबर केड़ा है, 2 नंबर केड़ा है। दूध लेना हो, बड़ी आले आले से नापते हो, पानी तो नहीं पिया, खालिस है कि नहीं। दुनिया की चीज़ों में आप इम्तियाज करते हो, दीन इतना आपकी नज़रों में बेगाना क्यों है? खुदारा अकल के नाखून लीजिए, कल को हुजूर के सामने जाना है, हुजूर का सामने जाना है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, बहुत खूबसूरत पगड़ियाँ, बड़े खूबसूरत जिस्म और चेहरों पे मेहराब और खूबसूरत चेहरे, मैं इस्तिकबाल के लिए खड़ा होना चाहूँगा। मरहबम बिकुम या उम्मती, मेरे उम्मती आगे युहालु बैनी व बैनहुम, मेरे उनके दरमियान पर्दा हाइल कर दिया जाएगा। बताया जाएगा हुजूर ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद कुछ चीज़ों का इजाफा करके उन्हें दीन बना के असली दीन की शक्ल को बिगाड़ दिया, असली हुलिया बिगाड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त कहूँगा सुहकम सुहकम सुहकम,
दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मोहम्मद की आंखों से दूर हो जाओ। ए खुदा के लिए अगर हशर में हुजूर ने हमें दफा हो जाओ कह दिया, अल्लाह की कसम फिर कोई सहारा नहीं है। हमें अपनी नमाजों पे नाज नहीं, अपनी रोजे तस्बीह तिलावत पे नाज नहीं, मेरे आपके पास बख्शिश का आखिरी सहारा है। हम कमली वाले से शफाअत की उम्मीद रखते हैं, हौज़े कौसर से जामे कौसर पीने की उम्मीद रखते हैं। आखिरी सहारा हुजूर की मोहब्बत का अपने दामन में लिए हुए हैं। अगर ये सहारा टूट गया, याद रखो फिर कहीं भी अमन नहीं मिलेगा। किन्हें कहा जाएगा? याद रखिए, आज कहा जाता है तुम क्या तो ये जो हम काम करते हैं ये जुलूस और फुलां फुलां नबी के जमाने में नहीं था। स्पीकर था नबी के जमाने में? बोलो, जब फेसबुक खोलो ये दलाल भरे हुए। मस्जिदें पक्की नबी के ज़माने में थी, मदारस का इस तरह का निज़ाम नबी के ज़माने में था, इस तरह की सजदज नबी के ज़माने में थी? नहीं थी। जब तुम सीरत के जलसे करते हो, नबी के ज़माने में नहीं थे। तुम इस तरह की ज़ेबो ज़ीनत बनाते हो, नबी के ज़माने में नहीं थी। स्पीकर में अज़ान देते हो, नबी के ज़माने में नहीं थी। ये जायज़ है, हम करें तो नाजायज़ है। दोस्तों, इख्तिलाफ का नुक्ता समझिए। नई चीज़ को एक होता है दीन के अंदर दाखिल करना, एहदास फिर दीन का जुज़ बना देना। एक है एहदास लिद्दीन, दीन को मजबूत करने के लिए कोई रास्ता बनाना। मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ, खुदा करे मेरे आपकी कब्र का बड़ा हो जाए और अपने देहाती भाइयों को समझा पाऊँ। आप हकीम साहब के पास गए, उन्होंने आपको नुस्खा दिया, 3 चीजें दी, कहा इन 3 चीजों को ले जाओ, कूट लो, कूट के बारीक करो, बारीक करके आप इसके वो फक्की बना के इसको नोश करना, खा लेना, आपको शिफा मिल जाएगी। मौलाना शाह साहब हकीम साहब से पास वो 3 चीजें ले आते हैं। जब ये सुखा के कूटने लगे, पीसने लगे, मौलाना आसिफ शाह फरमाने लगे, हजरत कूटोगे पीसोगे वक्त दरकार होगा। उन्होंने अपने ज़माने की बात की थी, अब तो जदीद दौर है, मैं आपको ग्राइंडर मशीन ला देता हूँ, सेकंडों में आपकी दवाई पीस के आपके पास आ जाएगी। इन्होंने कहा ठीक है। अब हकीम के बताए हुए नुस्खे की जात में इन्होंने इजाफा नहीं किया, 3 को 3 ही रखा है, अलबत्ता रास्ता और अपना लिया। जमाने की सहूलत से फायदा उठाकर, उस दौर में दोरी डंडा था, आज के दौर में ग्राइंडर मशीन है, चीज वो ही रही, उसकी असलियत को तब्दील नहीं किया, उसकी जात पे इजाफा नहीं किया। ये तो जायज है। तीसरा बंदा ये करता है, कहता है 3 चीजें थोड़ी हैं, ये चौथी चीज भी बड़ी मुफीद है, इसको भी आप अंदर दाखिल कर ले तो आपको शिफा जल्दी मिल जाएगी। अब इसने जो चौथी चीज मिलाई, उसने पहले नुस्खे की जात में इजाफा किया है, उसके अंदर इजाफा किया है। हर नई चीज का इजाफा बिदअत नहीं है। नबी के दौर में स्पीकर में अजान नहीं थी, अगर आज होती है तो हमने स्पीकर को अजान का जुज नहीं बनाया, दीन का हिस्सा नहीं बनाया। हमने कहाँ कहा है जो अजान में स्पीकर में अजान नहीं देगा तो सवाब कम होगा, स्पीकर में दोगे तो सवाब ज्यादा होगा। हमने अजान की जरूरत के लिए, अजान को दूर पहुंचाने के लिए, पहले दौर में घर भी तो छोटे थे, छत पे खड़े होते, अजान की आवाज हाथ तक पहुंच जाती। अब इमारतें बन गई, जमाना वसी हो गया, जमाने की सहूलत से फायदा उठाकर स्पीकर का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन स्पीकर को हमने अजान के इजाफे में नहीं बनाया। इजाफा तब था जब किसी नई चीज का अजान से पहले या अजान के अंदर इजाफा करते। याद रखिए, हर ऐसा नया काम जिसको दीन बना के किया जाए, शरीयत समझ के किया जाए, दीन के अंदर इजाफा किया जाए, वो बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है। और मेरे नबी का फैसला है, सुनो, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही आपको जहन्नम में ले जाए। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। इन गुनाहगार आंखों ने देखा, इस गांव का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक सवाल छोड़ रहा हूं, जो इस मजमे में बूढ़ी उम्र के लोग बैठे हैं, दिल से फैसला करना, प्रोग्राम खत्म हो घर में जाना, एक सवाल सोचना, आज से 50 साल पहले ये सारे काम थे? क्यों जी? बोली बोलना,
कोई नाराज ना हो जाए, होली बोलना भाई, हुजूर के लिए बोलो भाई। ये काम थे? कौन सा नया नबी आया है? आपके रिश्तेदार बैरून मुल्क होंगे, कोई सऊदीया में होगा, कोई मस्कत में होगा, सलाले में दूर दूर हो गए, फोन करो उनसे पूछो रबीउल अव्वल आपके पास आता है? कहते आता है। यहाँ जो चीजें हैं वहां हैं, आपको जवाब नफी में आएगा। याद रखिए, बिदअत इलाकाई होती है, इलाके की रिवाज होती, रस्म होती है। मेरे नबी की सुन्नत इंटरनेशनल होती है, जो यहाँ भी हो, सऊदीया में भी हो। फजर की नमाज की रखते कितनी, सुनते सुनते कितनी, कुल रखते कितनी? बोलो भाई, हिम्मत से बोले। यहाँ पाकिस्तान में कितनी, सऊदीया में, यमन में, अरब अमारात में, मशरिक और मगरब फिर के देख लो, यहाँ 4 हैं, वहाँ भी 4 हैं, क्योंकि 1400 साल से 4 ही चलती आ रही, और इंशाल्लाह क़यामत तक कितनी रहेंगी? क्यों? मेरे नबी की सुन्नत है। दूसरा फर्क, रस्म और रिवाज और सुन्नत में फर्क ये है, पहला याद रखना, रस्म इलाकाई होती है और सुन्नत, बोलो बोलो, सुन्नत आल और इंटरनेशनल होती है। दूसरा फर्क, रस्म और रिवाज में जिसका दिल करे कमी कर ले, जिसका दिल करे इजाफा कर ले, और सुन्नत कोई माई का लाल ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। मेरे नबी ने सुनते फजर कितनी पढ़ी? बोलो भाई, कोई बंदा 3 पढ़ सकता है? हरज की है जी, ये भी एक सवाल है। मौलवी जी हरज की है, अगे रख के कुरान ही ते पढ़े, कुरान पढ़ना कोई गुनाह का काम है जी? नहीं, ते हरज की है, असी कुरान पढ़ने तुसी कहते हो हलाल ही नहीं। ओ बाबा, हरज मरज की बात नहीं, हमने मोहम्मद की मोहर को देखना है, इस पे हुजूर ने सनद लगाई है। कि नमाज में सजदे कितने एक रकत में? बोलो भाई, सजदा किसको किया जाता है? नमाज में सबसे कुर्ब इंसान का सजदे की हाथ में अल्लाह से भी। तो कोई बंदा कहे 2 थोड़े होंगे ने, मैं 4 सजदे करांगा, नमाज हो जाएगी? भाई हरज की है, चंगा काम ही तो कीता है। फजर की 4 रखते हैं आप, 6 पढ़ लें, हरज क्या है भाई? अच्छा काम ही तो किया है। कुर्बानी करते वक्त आप तकबीर पढ़ते हैं, आप तकबीर ना पढ़े कि और शुरू कर ले, हरज क्या है? जवाब आएगा, हरज ये है, हुजूर ने हमें 4 रखते बताई हैं तो हम 4 ही पढ़ेंगे, सजदे 2 बताए हैं 2 ही पढ़ेंगे। यही तो बता रहा हूँ, नबी ने खुशियां भी की हैं, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने गमियां भी की हैं। नबी से देख लो तरीका क्या है, झगड़े सारे खत्म हो जाए। क्या ये सुन्नत है? पिछले से पिछले साल रबीउल अव्वल 12 में एक जगह हाजिरी थी, गुनाहगार आंखों का देखा वाकया बता रहा हूँ। जुलूस जा रहा है, उस जुलूस में आगे आगे ढोल ढमक्का था, और एक डाची निकाली, डाची के ऊपर एक बूढ़ी माई बिठाई, बूढ़ी माई की गोद में एक मासूम बच्चा बिठाया, और मरहबा मरहबा के नारे लग रहे हैं। तसव्वुर किया दिया जा रहा है कि ये हलीमा बच्चे को लेके जा रही है, रियाज़ुबिल्लाह, ना जाने कल कोई ये बच्चा चोर बने या डाकू बने, क्या बने। हमने कहाँ तसव्वुर दे दिया, कहाँ तक चले गए। नाच गाने नहीं हो रहे, आप नेट के ऊपर देख के देख लीजिए, बना सना के लड़कियों को, दोशीज़ा को सामने नहीं रखा जा रहा। एक दफ़ा मेरी हाजिरी थी, आप अभी अपने करीब नारोवाल में देख ले, 12 को देखना, रात के वक्त यूँ लगता है जैसे दिन के 12 बज गए हों, यूँ हर तरफ चरागा होता है। अल्लाह की कसम, अगर मिलाद नबी की सीरत बयान करने को कहते हैं, नबी की अजमत को बयान करने को कहते हैं, तो सुनो देवबंद का अकीदा ये है, जो नबी के इस मिलाद का मुनकर है, उससे बड़ा लानती कायनात में कोई, कौन मुनकर है? खुशी का कौन मुनकर है? इससे बड़ी खुशी के अल्लाह ने रहमत वाला नबी दिया, लेकिन खुदारा तरीका वो हो। इस वक्त बड़े बड़े इनके उलमा सर पकड़ के बैठ गए, हमारे लोग दिन ब दिन कहाँ जा रहे? ये रक्स और नाच गाने, नबी इनको तोड़ने के लिए आए। नमाज छूट दिया छूट जाए, कोई परवाह नहीं, ये काम ना छूटे। अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। मैंने किसी फिरका वारियत को हवा देने के लिए नहीं, आपके ज़मीर पे दस्तक दी है। हर काम में देखो महबूब कायनात से मोहब्बत का तरीका क्या है, हुजूर ने किया कैसे है, अंदाज क्या था, अतवार क्या था। अल्लाह हमें हुजूर की सीरत को समझकर शब रोज़ इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आओ दोस्तों, एक काम करें, हुजूर की मोहब्बत को सुबह शाम आम करें।
جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی